Hello students, today we are going to discuss our next chapter, that is Indigo, and it is written by Louis Fisher. Okay, Louis Fisher is a well-known American journalist and he has worked for many publications over the world in different countries, and for different publications he has worked. Okay, now let's see this particular chapter, Indigo. Actually this is an excerpt from a book, The Life of Mahatma Gandhi. Okay, this is biography. Okay, and it is written by Louis Fisher. लुई फिशर ने जो है गांधी जी की बायोग्राफी लिखी है, एंड द नेम ऑफ द बायोग्राफी इज द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और इस पर्टिकुलर बुक में से, इस बायोग्राफी में से ये क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट लिया गया है इंडिगो। ओके, सो व्हाट इज इंडिगो ऑल अबाउट? ओके, इस इंडिगो डील्स अबाउट द इंसिडेंट्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंस, okay, and it actually deals with the initial time of Indian struggle for freedom, and the story ranges near about 1916-1917। तो जो इंडियन जो मूवमेंट चले स्ट्रगल के फ्रीडम के लिए, जो इनिशियल जो मूवमेंट्स हुए, जो स्ट्रगल हुआ, उन मूवमेंट्स का जो है ये मींस उनमें से एक है 1966, एंड द स्टोरी और द एपिसोड इज अबाउट चंपारण। ओके, चंपारण। ओके, मींस दिस प्लेस figures a lot in Indian freedom movement, or means all of you must have heard this place, about this place. This is in Bihar. Okay, so the story is of pre-independence time 1916-1917, and it was the time when the outrage against the against the British was started in India। जैसे शुरू ही हुआ था इंडिया में अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो मूवमेंट था, जो आउटरेज था या जो एंगर था, उसकी वो शुरुआत थी। और उसमें जो है ये 1916-1917 का ये पर्टिकुलर चंपारण मूवमेंट है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम अदर थिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। ओके, background means it is a part of biography. The episode is set in Champaran, deals with pre-independence time, and it is one of the initial movement of the initial movements from the Indian freedom, Indian struggle for freedom. Now let's see what is the story all about. Now, as I told you, the story is the moment is of 1916 and 1917. But before entering this particular moment, we need to go to the backdrop of the story, कि भाई ऐसा क्यों स्टार्ट हुआ कि ये मूवमेंट जो है चंपारण मूवमेंट या इंडिगो मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसका जो इसके जो पीछे है, इसके जो मीन्स जो लॉजिक था इसके बिहाइंड, वो क्या था कि एक्चुअली जो चंपारण जो पीजेंट्स थे, जो चंपारण फार्मर्स थे, they were sharecroppers। Sharecroppers। Okay, now what is the term sharecropper related to? Means they had to share their crops with whom? With the Britishers। Okay, actually the Indian farmers were tenants। Tenants means who works for another on some means on another's land for some and pays some rent for that। ओके, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी को लैंड को यूज करता है और उसके बदले में कुछ
रेंट देता है। नाउ एट दैट टाइम बिकॉज देयर वर द रूल ऑफ ब्रिटिश वाज इन इंडिया, तो दे वर कंसीडर्ड टू बी द ओनर ऑफ द लैंड, मींस दे वर लैंडलॉर्ड्स। Okay, British landlords actually, and they were the owner of land. Now, let's try to understand the scenario of that particular time. Now, what was there is for the as I told you that the Indian farmers were sharecroppers. They had to share their crop, their harvest with the British landlords. Okay. At the sharecropping system, what was the sharecropping system? Sharecropping system said that the Indian farmers had to grow 15%. Okay, suppose this is a piece of land owned by a farmer A. Okay, he is the owner of this particular land and he has this much land to his credit. Okay, उसके पास इतनी land है जिसके ऊपर वो खेती करता है। अब इसमें उसको क्या करना था? He had to grow इंडिगो on 15% of its land. Okay, अपनी लैंड के 15% पे उसको क्या करना पड़ता था? इस पार्ट में उसको इंडिगो उगाना पड़ता था। ठीक है, इसमें किसकी खेती होगी? इंडिगो। And the 85%, the remaining 85%, he was free, है ना? He was free to plant any crop, है ना? वो कुछ भी खेती कर सकता था, लेकिन 15% कंपल्सरी था उसके लिए इंडिगो की खेती करना। और दिस हार्वेस्ट ऑफ इंडिगो वाज टू बी पेड टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज ओके। इसकी जो हार्वेस्ट होती वो 15% की सारी इनको रेंट पे होती थी, और बाकी जो होता था 85% उस पे इंडियन फार्मर्स कुछ भी खेती करके और वो हार्वेस्ट अपने पास। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर सिस्टम वाज नोन एज sharecropping because the crop was shared by two people. तो there's a share, okay, तो उसमें क्या हुआ? That was known as share. अब ये जो सिस्टम था that was a long term system. Okay, long term system is that goes for 5 years, 10 years, okay, 7 years. इस ये नहीं था कि ईयर बाय ईयर द सिस्टम गोट रिन्यूड, ऐसा नहीं था, हर साल रिन्यू नहीं होता था। वो क्या होता था कि काफ़ी ईयर्स तक चलता है ना, कि 5 years 10 years इस तरह की प्लानिंग होती थी। एंड मान लीजिए कि जो है इसका इस जो है पर्टिकुलर लैंड का ओनर है P और इसका फार्मर है A, वो टेनेंट है A, तो P और A में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, एक पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दैट मे बी 5, 7, 10 years का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, और ईयर बाय ईयर जो है A जो है P को हैंड ओवर करता रहता था हार्वेस्ट। ओके, दिस वाज डन, और मैंने बता दिया आपको ये लॉन्ग टर्म। अब क्या हुआ 1915, नियर अबाउट 1915 जर्मनी, ओके, जर्मनी में क्या हुआ? Germany produced synthetic indigo. जर्मनी में क्या हुआ? सिंथेटिक इंडिगो का प्रोडक्शन शुरू हो गया। इट मीन्स इंडिगो की जो प्रोडक्शन है वो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में शुरू, ओके, कृत्रिम जो इंडिगो है उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया जर्मनी। सो अब क्या हुआ कि इस जो है ना, इस प्रोडक्शन के बड़े ना लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हुए, इस सिंथेटिक इंडिगो के प्रोडक्शन के बड़े लॉन्ग टर्म जो है इफेक्ट्स हुए, और वो क्या थे? लेट बी हियर, दिस इज इंडिगो, 15% इंडिगो, फार्मर इज A and owner is a British landlord. ओके, अब क्या हुआ कि इसमें जब जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो का प्रोडक्शन शुरू हुआ तो इसके बड़े मेजर चेंज है ना, बड़े इफेक्ट्स हुए। क्या? फर्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्या हुआ? टाइम ड्यूरेशन कम। ओके, टाइम ड्यूरेशन कम कैसे हो गई? क्योंकि क्या हुआ कि जैसे एक तो जब आप प्लांट करते हैं इंडिगो को, खेतों में लगाते हैं, तो क्या है दैट इज ए लॉन्ग टर्म जो है प्रोसेस,
कि आप उसको पहले प्लांट करेंगे, फिर उसको टेक केयर करेंगे, मीन्स उसको सिंचाई आपको करनी पड़ेगी, और फिर उसको जैसे काफ़ी टाइम के बाद उसको काटना, उसकी हार्वेस्टिंग, और बहुत लंबा प्रोसेस होता था। लेकिन जब फैक्ट्रीज में इंडिगो का, सिंथेटिक इंडिगो का प्रोडक्शन शुरू हुआ तो दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम गॉट डिक्रीज ऑफ है, मीन्स बहुत ज़्यादा है ना, जो मीन्स 1 ईयर में 6 मंथ्स में जितना प्रोडक्शन होता था दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड इन 10 और 15 मंथ्स। तो एकदम से टाइम पीरियड कम। दूसरा क्या हुआ, मैन पावर, क्या हुई, मैन पावर बिल्कुल कम रिक्वायर्ड थी, मीन्स इंडस्ट्रीज में जो है ज़्यादा मशीनों से या इस तरह से शुरू हो गया, तो मैन पावर जो थी वो बिल्कुल कम। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स was effect was more production। क्या हुआ, प्रोडक्शन इसका क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, है ना, फैक्ट्री से। अब सीधा सा इकोनॉमिक्स का मीन्स हम जब पढ़ते हैं तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट आता है कि जब प्रोडक्शन किसी चीज का डिमांड से ज्यादा हो जाता है तो उसके जो प्राइसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, प्राइसेस गॉट डिक्रीज्ड। अब आप देखिए क्या होगा, इस इंडिगो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, मींस एटलीस्ट दैट इज द प्रोसेस ऑफ 6 मंथ्स, गॉट इट। नाउ मान लीजिए चलो 6 मंथ्स के बाद उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है इंडिगो का, मान लीजिए इनको यहाँ से 10 kg इंडिगो मिलता है, ओके। और अब क्या हुआ कि जब इस टाइम से पहले जो मान लीजिए उसका प्राइस लेट्स अज्यूम कि वो 10 रुपीज था, तो उनको वो मिल रहा था कितने रुपीज का, 100 रुपीज का उनको अर्निंग हो रही थी यहाँ से। बट व्हेन द प्राइसेस गॉट डिक्रीज, बिल्कुल कम हो गए तो क्या हुआ कि यही जो है 10 kg इंडिगो, मान लीजिए प्राइसेस इतने कम हो गए दैट वाज ऑफ नियरली ऑफ, तो दैट डेफिसिट, दैट जो है ना एक जो कमी हो गई 80 रुपीज की, तो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थॉट दैट दे वर मींस एक तरह से वो घाटे में चले, उनका नुकसान। तब उन्होंने क्या किया, दे केम अप विद अनदर प्लान, उन्होंने एक दूसरा प्लानिंग बनाया, क्योंकि ये जो चीज जर्मनी में हुई थी उस टाइम पे, एंड कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा था नहीं कि भाई जो है जर्मनी से सीधे इलेक्ट्रिक पीजेंट्स के पास जो है मैसेज आ गया कि वहाँ पर ऐसा हो गया, तो पहले वो इन्फॉर्मेशन किसके पास आई, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के पास। अब उनको ये लगा कि जो हमें जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे वो किया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए ये चीज होने से पहले, मींस प्राइस डिक्रीज होने से पहले उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पर जो 10 kg इंडिगो थी उसको मान लीजिए उससे डिक्रीज होने से पहले उसका प्राइस था, फिक्स प्राइस था 10 रुपीज, ओके, ये हो गया 10 रुपीज, और उनको वो कॉन्ट्रैक्ट था उनका 5 इयर्स का, ओके। तो उन्होंने क्या किया, इसको क्या कर दिया, मींस इसके अकॉर्डिंग इसका अमाउंट फिक्स कर दिया कि मींस आपको हम अब फ्री कर रहे हैं इस सिस्टम से कि यू आर फ्री टू प्लांट एनीथिंग ऑन द एंटायर लैंड, but according to that sharecropping or ancient system you will have to pay us the compensation money, there is a term compensation money। क्या करना पड़ेगा आपको, हमें कंपनसेशन मींस जैसे 10 into 10 इस टाइम पे था, डिक्रीज होने से पहले का मींस अब ये हो चुका है, लेकिन उन्होंने बड़े क्लेवरली, उनको ये पता था कि अब ये चीजें आएंगी सामने, तो उन्होंने पहले से उनको क्या कह दिया कि भाई हम आपको इस सिस्टम से रिलीज कर रहे हैं, लेकिन आपको 10 into 10 into 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप हमें क्या कर दीजिए, अमाउंट पे कर दीजिए, एंड वी आर गोइंग टू लेट यू फ्री ऑफ द सिस्टम। अब क्या था कि बहुत सारे जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, they were already tired, they were in some or that the system was very irritating for them, है ना, वो बड़े परेशान थे पहले से, so they signed willingly, उन्होंने साइन कर दिए पहले ही कि ठीक है हम ऐसा करने के लिए एग्री हैं। कुछ एक ने अपोज किया तो ब्रिटिशर्स ने दूसरे तरीके अपनाए, ठग सायर किए, उनको मींस लीगल प्रोसीजर में उलझा लिया, कोर्ट्स में उनको लेकर गए, तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। नाउ अब हुआ क्या, देखिए अब मींस इफ
think or if we come across with this planning theoretically, there is nothing wrong कि भाई ऐसा था, ऐसा उनको पे करना था तो ऐसा हो गया उनके लिए, that is fine. But on practical level, this was merely another form of experiment. How? Let's see. कि देखिए आप देखिए कि जब उनके पास क्या था कि जब उनके पास 15% का सिस्टम था, जब उनको इंडिगो प्रोड्यूस करनी थी 15%, है ना, तो क्या होता था कि उस टाइम पे एज यू मींस आपने काफ़ी सारी मूवीज़ भी देखी होगी, लगान मूवी आपने देखी होगी कि बहुत सालों तक बारिश नहीं होती थी, 3-4 सालों तक, एंड द एग्रीकल्चर वाज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन रेन. ओके, दैट वाज द मींस एक तरह से चीफ सोर्स ऑफ इरिगेशन. तो उनके लिए उस टाइम पे क्योंकि तो और कुछ था नहीं, तो उन्होंने क्या किया और ज्यादातर रेन पे डिपेंड होते थे. तो फिर क्या हुआ कि जैसे 2-3 साल तक बारिश नहीं हुई, देयर वाज ड्रॉट. ओके, कभी क्या होता है, देयर वाज सो मच रेन दैट इट ब्रॉट फ्लड्स. ओके, तो दोनों ही उसमें क्या होता है, समटाइम द क्रॉप वाज इन्फेक्टेड बाय इन्फेस्ट और इस तरह से बहुत सारी जो है डिजीजेज और इस तरह हो जाता था, तो क्रॉप क्या हो जाती थी, मोस्टली डिस्ट्रॉय हो जाती थी. अब जब तक देखिए एक समझने की जो है बात है, छोटी सी बेसिक थिंग है, जब तक यहाँ पर 15% था तो यहाँ का जो प्रोडक्शन होता था कि मान लीजिए दैट में बी 1 kg, दैट में बी हाफ kg, ओके, दैट में बी 10 एंड दैट में बी 100 kg, वो उसको क्या करते थे, हैंड ओवर कर देते थे एंड दैट वाज ऑल खत्म हो जाता. भाई ऐसा ही हुआ, ये आपका ये प्रोडक्शन है 15% का, टेक इट एंड लेट मींस पूरे एकड़ में मान लीजिए 100 kg हुआ है तो उनको 15 kg उनको दिया एंड दैट वाज दैट, खत्म हो जाता. ठीक है, अब मान लीजिए पूरे एकड़ में या पूरी जमीन में उनके पास 50 kg हुआ, 7.5 kg उनको दिया, 15% दिया, दैट खत्म हो जाता था. पूरे खेत में 10 जो है मान लीजिए kg हुआ तो उन्होंने उनको पे किया कितना, 1.5 kg पे किया एंड दैट वाज खत्म. लेकिन जब उन्होंने अमाउंट फिक्स कर दिया ना तो दिक्कत है. कैसे कि बताता है कि काफी बार जैसे मान लीजिए कोई डेवलप्ड इरिगेशन नहीं था, डेवलप्ड सोर्सेज नहीं थे उसके लिए मान लीजिए आपके उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए, तो क्या होता था, कई बार ऐसा होता था फ्लड्स है, ड्रॉट्स है, इन्फेक्शन है, काफी सारी चीजें ऐसी हैं, उनकी वजह से क्या होता था, मींस 15% में ही नहीं, पूरे खेत में, पूरे जमीन पे, पूरी लैंड पे इतने की खेती नहीं होती थी जितना कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था हर साल पे करने का. अब देखिए क्या होता कि इन्होंने जो है मान लीजिए दैट इज फॉर इमेजिनेशन 100 रुपीज पे करने हैं इसके, और क्या हो रहा है कि पूरे खेत में, पूरी लैंड पे 100 रुपीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. अब क्या, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो वो एनक्लोज है, बंधे हुए हैं, अब क्या करेंगे, मान लीजिए उन्होंने 70 पे कर दिए, 70 रुपीज पे कर दिए, 30 रुपीज के लिए वो कहाँ जाएंगे, दे विल गो टू दोज साहूकार्स एंड दे विल बोरो मनी ऑन हाई इंटरेस्ट. ओके, मींस वो भी सिर्फ पे करने के लिए, अब उनकी पूरे साल की लेबर, उनके खुद के खाने के लिए, उनके जो चीजें हैं वो खत्म. सो दैट इज व्हाई दे थॉट दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड. मींस अनलेस और until the amount was not there, the amount or the price money was not there, they were coping up with this system. ओके, वो चल रहा था, ठीक है भाई, जितना होता था पे कर देते थे, बचा हुआ रख लेते थे और किसी तरह से उनसे अपनी लाइफ स्पेंड करते. लेकिन जब अमाउंट फिक्स हो गया तो क्या हुआ, तब उनको लगा कि दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि पूरे उसमें इतना नहीं हो रहा था प्रोडक्शन जितना कि वो ब्रिटिशर्स डिमांड. ओके, दैट इज व्हाई दिस मींस दोज पीपल मींस वन ऑफ दोज फार्मर्स, राजकुमार शुक्ला, went to Gandhiji and asked him to look into the matter and take necessary steps to remove the plights of the farmers. Okay, that is what the story is all. Okay, let's take some of the things from the chapter. Now let's start from the chapter. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1970. Let's see, Louis Fisher first visited in 1942. Okay, जब आप किसी की बायोग्राफी लिखते हैं तो आपको उनका इंटरव्यू करना होता है, उनसे जो रिलेटेड जो और लोग होते हैं उनके व्यूज़ लेने होते हैं, फीडबैक लेना होता है लोगों का. और देखिए
the book The Life of Mahatma Gandhi has been considered one of the best books ever written on Gandhi ji. Okay, क्योंकि जनरली क्या होता है कि क्योंकि बिकॉज ही इज एन अमेरिकन, तो उनके जो व्यूज है ना गांधी जी को लेकर, दे आर ऑब्जेक्टिव व्यूज, दे आर नॉट सब्जेक्टिव व्यूज. सब्जेक्टिव व्यूज क्या होते हैं, जहाँ पर आदमी कुछ प्रेशर में होता है. मीन्स इफ एन इंडियन है ना ऑप्ट्स टू राइट अबाउट गांधी जी, है ना, वो कभी जैसे इतना ज़्यादा उनके बारे में गलत नहीं लिख पाएगा. मीन्स उनकी अगर कोई ड्रॉबैक्स है उनको हाईलाइट नहीं कर पाएगा. बट ही हैज़ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. उन्होंने बिल्कुल वही लिखा है जो उन्होंने देखा, एक्सपीरियंस किया. And in the entire chapter, you will never find the word written as Gandhi ji. He has written only Gandhi. Because for us, Gandhi ji is the father of nation, but for him, he is a person, he is a great leader, and he has written his biography. That is why this is one of the best books. क्योंकि उन्होंने अपने बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, जैसा उन्होंने वहाँ फील किया, जैसा उन्होंने देखा लोगों के व्यूज हुए, वैसा ही उन्होंने वहाँ पर. तो when I first visited, means in the process of interviewing गांधी जी, जब वो पहली बार हुई 1942 में गांधी जी से मिले at his ashram in सेवाग्राम, that fell in central India at that time. At this particular time, Gujarat in West India, because at that time Pakistan was also associated linked with India. It was part of India. तो गुजरात fell in central India. Okay. तो उन्होंने बताया कि क्योंकि he said I will tell you, तो गांधी जी ने उनको बताया I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. कि why I felt that the British should depart from India. कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको इंडिया छोड़कर चले जाना चाहिए. And it was in 1917. कहता है मुझे देखिए एक चीज़ और है, many of the great leaders of India before 1915 or 1914, कुछ टाइम से पहले मीन्स 20th सेंचुरी से पहले लोगों का फीडबैक ये भी था, लोगों का ओपिनियन ये भी था कि ब्रिटिश रूल इज गुड फॉर इंडिया. एंड इट वाज गुड इन सम एस्पेक्ट्स, इन मैनी एस्पेक्ट. अच्छा था, टेक्नोलॉजी जो भी चीज़ें आई इंडिया में, द क्रेडिट गोज टू द ब्रिटिशर्स. ओके, तो जो अच्छे जो मॉडरेट्स थे, उनका जो मॉडरेट जो पॉलिटिशियंस थे, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ब्रिटिश जो रूल है दैट इज गुड फॉर इंडिया. और गांधी जी वॉज ऑल्सो वन. But in 1917, he said in 1942 interview, he told Louis Fischer that in 1917, I realized for the first time that the British should leave India. Means अब जो है उनका जो रूल है that is not good for India. Means they are exploiting our farmers, they are exploiting our poor people, and they should leave India. Okay, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए. And why was that? He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. Convention is a meeting that was a gathering of some politicians or representatives. Session मान सकते हैं आप. Means year by year, है ना, जो Indian Congress means that was the chief political party at that time. तो और वो एक तरह से ऐसे मानते थे कि we represent the people of India. उनको represent करते थे, तो करते हैं ऐसा मानते थे वहाँ के जो लीडर्स होते थे कांग्रेस के. तो उसके लिए वो क्या करते थे, ईयर बाय ईयर अपने सेशंस रखते थे इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इन सम टाइम इट मे बी लखनऊ, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, अमृतसर और दिल्ली और अहमदाबाद. मीन्स इस तरह से अलग अलग प्लेसेस पर वो क्या करते थे, और जो लोकल जो लोग थे उनकी प्रॉब्लम्स को वो लेते थे. ओके, तो जो 1916 का जो एनुअल कन्वेंशन सेशन था कांग्रेस पार्टी का, दैट वाज इन लखनऊ. Okay, and Gandhi had gone to participate in that convention. Okay, there were 2,301 delegates and many visitors. Delegates, the politicians or representatives, and many visitors. During the proceedings, Gandhi remembered. Okay, a peasant came up to me, looking like any other peasant in India, poor and emaciated, weak. Means in the proceedings, a farmer came up to me, a peasant came up to me. And he was looking like any other peasant, any other farmer in India, that is poor and emaciated, weak and poor. Means that is the, according to Gandhi, that is the trademark quality of Indian farmers. Means he was looking poor and he was looking emaciated, weak. And he introduced himself as, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. And I want you should come to my district and visit my district and see the plights of the people. Gandhi had never heard of the place. Gandhi had, इससे पहले गांधी जी ने उस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था. He had never heard of that place.
है ना, चंपारण. It was in the foothills of the towering Himalayas, बिल्कुल तलहटी में, हिमालयाज के नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, बिल्कुल नेपाल जो है कंट्री के बॉर्डर पे. Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. As I told you, the Champaran peasants were sharecroppers. Okay, they had to share their crop, their harvest with the British landlords. Rajkumar Shukla was one of them, and Rajkumar Shukla was also one of them. He was illiterate. He was illiterate but graduate. Means illiterate. He could not read or write. Illiterate था, but he was graduate, firm, determined. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said speak to Gandhi. देखिए, when he had come to Lucknow, Rajkumar Shukla, he had no intention of talking to Gandhi जी, और उन्होंने उनको पता भी नहीं था कि इस नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट भी करता है शायद. वो सिर्फ कंप्लेन करने के लिए आए थे, भाई कोई भी पॉलिटिकल लीडर मुझे मिलेगा, आई विल कंप्लेन टू हिम अबाउट दिस सिस्टम. ओके, बट हियर जब उसने वहां पर किसी से अपनी कंप्लेन जो है रजिस्टर की होगी, किसी को बताया होगा, तो somebody suggested him that you should talk to Gandhi ji in this matter. Gandhi ji से बात. Gandhi told Shukla, and he talked to Gandhi ji. Gandhi told Shukla that he had an appointment in Kanpur and also committed to go to other parts of India. उस गांधी जी ने क्या बताया कि भाई मुझे जो है ना कि I have an appointment in Kanpur, इसके बाद मुझे कानपुर जाना है, and was also committed to go to other parts of India, and after this I have to visit other parts of the country as well. Shukla accompanied him everywhere. Shukla accompanied him everywhere. He remained with him everywhere, है ना? Wherever he went, he followed him. Shukla followed him. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad, and after completing his commitments, completing his engagements, Gandhi returned to his ashram. For weeks, Shukla followed him to the ashram. Shukla followed him even to his ashram. For weeks, he never left Gandhi's side, and for many weeks, he never left Gandhi. Fixated, and after when a lot of time has spent, he begged, he requested, he pleaded him, please fix a date when you can visit my district. Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, tenacity means determination, प्रतिबद्धता है ना, एक means जो perseverance, लगन, उससे प्रभावित होकर गांधी जी ने क्या कहा, और उसकी स्टोरी से, I have to be in Calcutta on such and such date, कि मुझे इस डेट को जो है I have to be in Calcutta, come and meet me and take me from there. You can meet me in Calcutta, come there and meet me there, and then I will accompany you to your district. We will go to your district, and then we will see what I can do. Okay, so we will be ending this chapter here. Okay, the rest of the chapter will be taken into the next lecture. Thank you very much.